خاص لوگ ہوتے ہیں, عام نہیں ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بیٹھے بھئی جتنے نمازی مسجد میں آتے ہیں کیا سب مومنین ہیں؟ ہاں جی نہیں, بات شیعہ سننے کی نہیں ہے سر, سادہ سی سمپل سی بات, کیا سارے مومنین ہیں؟ نہیں. اچھا کیا سارے ہی اللہ کے ولی ہیں؟ نہیں. بہت سارے ایسے جناب, آپ یعنی تھوڑا سا ٹیڑھے ہی ہو کے کھڑے ہو گے نا تو غصے سے آپ کو جلال کرے گا کہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو. بھئی وہ کسی اور عقیدے سے ہے, وہ پاؤں کھول کے کھڑا ہو گیا تو ساتھ والا حقارت سے دیکھے گا کہ یہ کیسے کھڑا ہوا ہے, بھئی کیسے نمازی ہیں ہم. اور ہم پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. یعنی مجھے یہ تو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ ساتھ والا کپڑے کیسے پہن کے کھڑا ہے, اس کا کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی ہے, دستار ہے, امامہ ہے, نہیں ہے. یہی چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے. اس لیے نا جی یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, چلے اسی کی میں مثال کو کر دیتا ہوں. یہ جو اللہ اللہ ہم کرتے ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں, مقصود اللہ ہے. لیکن فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باطنی لطائف ہے نا, قلوب و اذہام ہے, وہ صاف ستھرا اجلا ہوتا ہے ذکر کرنے سے, بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے. جو اس میں قدورتیں, غفلتیں, ہوا ہرس, غصہ غضب, عجب تکبر, یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے سے صاف ہو جاتی ہیں. یہ جو غفلتیں ہیں, اندھیرے جو چھا جاتے ہیں ہمارے دلوں میں, ہمارے باطن میں, یہ سب کے سب صاف ہوتے ہیں. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. تو جب ہم صاف ستھرے ہو جائیں گے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے, اللہ کا نام پکارتے رہیں گے, تو پھر ہمارے قلوب و اذہام میں کیا آئے گا؟ اللہ کا کرم آئے گا, اس میں انوارات آئیں گے, اس میں اللہ کی تجلیات آئیں گی. اور اللہ کا قرب کیا ہے؟ اس کے انوارات اور اس کی تجلیات. اللہ کہتا ہے میں کہیں نہیں سماتا لیکن مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے, لا شریک رب ہے, لا متناہی ہے, بہت ہی بڑا ہے. اس کا نور, اس کی تجلیات, اس کے انوارات دل میں, قلب میں سما جاتے ہیں. اور جس کا قلب فل آف نور ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں, اس کی جوار رحمت میں رہتے ہیں. اللہ ان کو اپنی قبا میں رکھتا ہے, وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں, اللہ سے ربط میں رہتے ہیں, کنیکشن. وہ اللہ کو نہیں بھولتے, اللہ انہیں نہیں بھولتے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اللہ پاک ہے عیبوں سے. یہ اس کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ بھول جائے, یہ انسانوں کی صفت ہے. تو اللہ جب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں, تو بھائی یاد کرو گے تو وہ کرے گا نا. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا میں تمہیں یاد کرتا ہوں پھر تم بھی مجھے یاد کرنا. نہیں 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 نہیں, اس کا مطلب آپ نے جو کرنا ہے ایکشن, اس کا ریٹرن اور ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ آپ کو یاد کرے گا. آپ نے یاد کیا, اللہ نے آپ کو یاد کیا. حدیث مبارکہ بھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میری طرف ایک بالش آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا, ایک قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا, تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا, تم ایک بار اللہ کہو گے میں 10 بار ان ریٹرن کہوں گا یا ودی. تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا, تم اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں یاد کروں گا, تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں اس سے بہتر مجمع سجا کے تجھے یاد کروں گا. اس کا مطلب پہلا قدم ہمارا اٹھے گا, پہلے یاد ہم بنائیں گے اس کی, پہلے ہم پکاریں گے اس کو. اور یہ جو پکار ہے, یہ جو ذکر ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟
इसका मतन क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है? इसकी स्पिरिट है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। इसका मतन है अल्लाह को राजी करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह को राजी करना। लेकिन लॉजिकली चेंजिंग क्या आती है? लॉजिकली चेंजिंग ये आती है कि जैसे जैसे आप अल्लाह 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 की पुकार अपने दिलों में लेते हैं, अपनी लताइफ को अज़कार में मशगूल कर देते हैं, तो आपके लताइफ साफ होते हैं, इससे कीना निकल जाता है, इससे ऐब निकल जाते हैं, इससे गफलतें निकल जाती हैं, अंधेरे निकल जाते हैं। ये कलूबो इज़हाम, ये बातनी लताइफ पाक साफ हो जाते हैं, मुनज़्ज़ा हो जाते हैं, फिर इसमें अल्लाह का कुर्ब होता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर खैर और भलाई का जो इल्म है वो हासिल करें। अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। मुझे नमाज नहीं आती और मैं कहूँ कि अच्छा अल्लाह मुझे दोस्त रखेगा, मुझे नमाज सीखनी चाहिए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप में से सबको नमाज के मामले में मुफ्ती होना चाहिए, तो दिस इज ट्रू, होना चाहिए। यस, दिस इज द डिमांड। मुफ्ती, मैंने इलामा नहीं कहा, मुफ्ती कहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझसे गलती हो गई, चूक हो गई, अब मुझे क्या हुक्म है कि मैं क्या करूं? नमाज तोड़ के किसी मुफ्ती साहब से पूछने जाऊंगा कि हज़रत साहब बताएं ये गलती हो गई नमाज में, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे अपनी नमाज का फैसला खुद ही करना है, देर एंड देन करना है कि हाँ भाई ये गलती हो गई, इसमें मैं दोहराई अपना सजदा सहू कर लूं। कुछ लोग सजदा साहब कहते हैं, एक ही बात है। या ये नमाज अब मुझे दोहरानी पड़ेगी, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी नमाज के मामले में जो फैसला करना है वो किसी मुफ्ती से नहीं कराना, खुद करना है। मुझे नमाज का इल्म होना चाहिए, मुझे वजू का पता होना चाहिए, गुस्ल का पता, तहारत का पता होना चाहिए, मुझे तयम्मुम का पता होना चाहिए कि मैं कभी सफर में हूं, मैं वजू नहीं कर सकता, पानी अवेलेबल नहीं, मैं तयम्मुम कर लूं। मुझे नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। मुझे कम अज कम अपना दीन इतना जरूर सीखना है कि मेरा ज़ाब्ता हयात, मेरी जिंदगी, मेरे रोजमर्रा के मामूलात दीन इस्लाम के मुताबिक हों। अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। हमें यह दीन सीखना है, कुरान सीखना है। किसी इलामा से, मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा कि हुजूर अगर दुआए कनूत ना आती हो इशा की नमाज में, वितरों में जो पढ़ी जाती है, तो क्या हुक्म है, क्या पढ़ लिया जाए? कोई और दुआ पढ़ ली जाए, कोई और सूरा पढ़ ली जाए, क्या हुक्म है? उसने कहा जी सबसे पहले तो ये बताएं क्यों नहीं आती? जी वो सीखी नहीं। कितना टाइम चाहिए उसको सीखने के लिए? अगर ये ऐलान कर दिया जाए अच्छा भी 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा जो आके दुआए कनूत सुनाएगा, तो सारा मुल्क अभी सुनाने आ जाएगा। वो पाकिस्तान के मुफ्ती थे, उन्होंने 1 लाख कहा, मैंने भी वही एग्जांपल कोट कर दी। भाई सारा मुल्क सूरह मुल्क याद करके सुनाने आ जाएगा पैसों के लिए। खुदारा कितना टाइम चाहिए दुआ कनूत को सीखने के लिए? कितना टाइम चाहिए हमें नमाज जनाजा को सीखने के लिए? कितना वक्त दरकार है? अल्लाह अकबर। अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। खुदारा दीन सीखें। ये जिक्र भी जो है, ये रूहानियत, ये बातनी निज़ाम के असबाक हैं, इनको भी सीखिए। यस, जिस तरह हम शरीयत सीखते हैं इसी तरह तरीकत भी सीखें, इसी तरह सुन्नतों को भी सीखें, फिर उनको अपनाएं भी, कुरान भी सीखें, फिर उसको समझें भी। और ये सारी चीज़ें शरीयत, तरीकत, सुन्नत और कुरान अपनी जिंदगियों में दाखिल करें। अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। और एक बात आपकी तसल्ली के लिए कह दूं, जिसको वो दोस्त बना लेता है फिर उसे जाहिल रहने नहीं देता, नहीं रहने देता वो उसको जाहिल। उसको अपनी कुर्बत में करीब करता है, सारे अलूम दे देता है।
कुरान सीखना उसके लिए आसान हो जाता है, नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना उसके लिए आसान कर देता है, जिक्र अज़कार उसके लताइफ। मुर्शद मैनू ऐसा सबक पढ़ाया ते बिन पढ़िया ही पढ़ीवे हूँ, फिर ऐसा मामला शुरू हो जाता है उसके साथ। लोग उसको मोतबर जानते हैं, लोग उसको इज्जत वालों में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको मोतबर कर दे तो खुदारा दीन इस्लाम सीखें। जिन औलिया इकराम के हम फॉलोअर हैं, जिन अहले तरीकत के हम मानने वाले हैं, उनमें से कोई एक बता दे जो ला इल्म था, जो इल्म से खाली था माज़अल्लाह। हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला का नाम लेते हैं, पूरे हिंद सिंध में आपका नाम लिया जाता है, पूरी दुनिया में आपको माना जाता है। आपको पता है वो आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन। हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला आलिम दीन थे, बहुत बड़े। इल्म सीखें। मैं ये नहीं कहता कि जाके सुबह इलामा का कोर्स में दाखिला ले लो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो कम अज कम इतना ज़रूर सीखें जिससे रोज़मर्रा के जो हमारी दीनी ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल की जा सके। भाई मैंने बचपन में मेरी माँ ने, मेरे बाप ने वज़ू सिखाया, उसी तरह वज़ू करता हूँ। कभी यार किसी इलामा साहब से, किसी मुफ्ती साहब से, किसी उस्ताद जी से एक बार प्रैक्टिस करके पूछ ही लो कि जनाब हज़रत साहब मैं वज़ू ठीक करता हूँ। कभी की इसकी आपने रिवीजन? कुरान भाई मैंने बचपन में पढ़ा था, उसको पढ़ ही रहा हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम में से किसी ने कोशिश की किसी उस्ताद जी के पास बैठ के यार मैं इसकी ज़रा दोहराई कर लूँ? टाइम ही नहीं है हमारे पास। नमाज मैंने बचपन में सीखी थी, अभी तक पढ़ रहा हूँ। भाई करेक्शन कराएं अपनी। जिक्र जनाब मैंने 20 साल हो गए मुझे जिक्र करते हुए। अच्छा किसी के साथ बैठ के यार अपने लताइफ की प्रैक्टिस ही एक बार दोबारा कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ भूल गया मैं करनी, मुझे याद नहीं। तो हर चीज़ हमें अपडेट रखनी है। हम मोबाइल लेते हैं ना जी, वो 15 दिन बाद, महीने बाद उस पर मैसेज आ जाता है कि इसका अपडेट वर्जन आ गया, ये अपलोड हो जाएगा खुद ही। ना करें उसे अपडेट, देखें स्लो डाउन हो जाएगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा डेड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी माशाल्लाह अशरफ साहब बैठे हैं, ये ज़्यादा अच्छी बता सकते हैं। 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी आज वो है 500 गुना बढ़ चुकी है अब तक। मुझे अच्छी तरह फ्लॉपी होती थी वो पता नहीं 5 KB की, आज 5 टेराबाइट की आप बेशक उनसे USB ले लें, कितनी कैपेसिटी होगी मेमोरी की। हम कभी सोचा करते थे, बचपन की बातें बता रहा हूँ, कि हम सुनते थे कभी अल्लाह पाक जो रोज़े महशर होगा सारा नामा अमाल आपके सामने होगा, फिल्म की तरह चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, आप मुकर ही नहीं सकते कि हाँ भाई ये मैंने नहीं किया। कैसे करेगा? आज की वो जो टेराबाइट वो USB है, वो बेशक किसी की सारी ज़िंदगी की फिल्म बना ले, वो भी उसमें पूरी आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम पामिस्ट के पास, कभी आप में से कोई गया हो तो कभी हाथ देखो, वो लकीरें देख के बता देता था इसकी ज़िंदगी इतनी है, इसका इल्म इतना है, शादियाँ इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, सब्र कितना है, पैसा होगा, गरीब होगा, कमज़ोर होगा, पढ़ के बता देते थे ना जी। भाई उसने कैसे पढ़ लिया? इसका मतलब उसके पास इल्म है। आपका नामा माल आपके दाएं हाथ में होगा, क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं ये पहले लिखा हुआ और आप लिख रहे हैं इस पर? अगर वो छोटी सी फ्लॉपी, छोटी सी USB आपकी सारी ज़िंदगी की रिकॉर्डिंग दे सकती है, एक पामिस्ट आपको आपके आने वाले वक्त के हालात बता सकता है, तो ये लकीरें क्या बताती हैं? उसने क्या पढ़ा और आप क्या पढ़ेंगे दाएं हाथ से? खुदारा हर खैर और भलाई के काम में हिस्सा लें, दीन को भी सीखें, शरीयत को भी सीखें, सुन्नतों को भी सीखें, अपनाएं, कुरान को भी सीखें, पढ़ें, पढ़ाएं, नमाज को कायम करें, जिक्र अज़कार सीखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। हर एक काम खैर और भलाई का, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये सब के सब अमल करने से फ़ायदा होगा। मुझे नॉलेज है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्या मुझे फ़ायदा देगी अगर मैं पढ़ता नहीं तो? मुझे पता है कुरान कैसे पढ़ते हैं, मुझे फ़ायदा देगा कुरान अगर मैं कुरान पढ़ता नहीं तो, प्रैक्टिस नहीं करता। मुझे पता है जिक्र कैसे करते हैं, क्या मैं करता नहीं जिक्र तो मुझे जिक्र फ़ायदा देगा? ओ बाबा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پریکٹس کیا کریں. اور آپ ماشاءاللہ کر کے آپ کو مبارک دے کے کہہ رہا ہوں، مبارک ہو، آپ پریکٹیکل لوگ ہیں. کیسے؟ آپ ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ذکر کرنے آئے ہیں نا جی. ہم سب ادھر ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہم پریکٹس میں ہیں. نماز پڑھی ہے اور پھر ذکر کے لیے ماشاءاللہ دائرہ بنا کے ہم بیٹھ کے. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا آنا قبول فرمائے. جو ہمارے اندر کمزوریاں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو، سستیوں کو دور کرتے ہوئے دین کو سیکھیں. اور یہ